Quickly, my name is Sophia Hasnain. I'm from LinkedIn. LinkedIn started out 7 years ago. आवाज आई पीछे तक ना माइक की तो जरूरत नहीं है क्या है नहीं है ना मैं काफी जोर से बोलती हूँ so we started 7 years ago as an Internet of Things company. Internet of Things when we started was an idea or a few implementations were happening in US and Europe. And our idea was to bring latest technology to Pakistan and support 3 use cases basically. One is energy management, and we have complete suite of real-time energy monitoring, energy management solution, energy mix calculations, efficiency, load monitoring, all of that. The second thing that we worked on is industrial side. So efficiency monitoring, inventory management solutions, predictive analytics on industrial operations. So we do that. And the third thing is, which I think is everybody is now conscious of, is climate change. So we also, as a company, support climate sustainability activities, promote practices in industries through technology. So our whole sort of the anchor product is our platform, which we call as digital twin platform. And the idea, digital twin is that whatever you have in the physical world, create exact replica of it in digital space, so that we will see what you can do with that is not only monitor what is happening in the physical space in real time as it happens on in digital space and anywhere. But the other idea is that you can actually simulate things on the digital side, which may happen or which might have happened in the physical space to recreate events, especially in the space of safety. You can always go back, simulate on this, like if some fire incident has happened, you can actually create replica of that event and you can trace the exact cause of that fire or exact cause of that particular event. So basically, when we look at this thing, I'll just quickly talk about, we are talking about our platform, which we call as digital twin, metaverse of things. So idea is to collect data from various sources. We all know the first industrial revolution was 1.0. Then we moved to 2.0, which was on mass production. 3 was automation, when all the SCADA systems came in and automation started to happen on the plant front. The fourth one is where when we started LinkedIn, we were working on Industry 4, which is the smart factory. So you start to get the data. You have done automation in the industry. You are able to open your valves, control your compressors, control different machineries, motors, whatever, through SCADA. But the idea is that, and those components, those instruments are generating data, but they remain on the plant floor. And you're not getting that information, you're not utilizing that information for decision making, for corporate decision making, for business decision making, for identifying safety issues, for identifying environmental issues. So the idea is to start to get the data, take it out of the space and present it in real time so that decisions can be taken in a timely manner. So that's Industry 4. In 2021, of course, it's not us, but it's Europe and US who are coming up with new terminologies, new ideas, how to actually bridge this gap between the Industry 4 and the climate change goals, basically. So that is that there are new industry specific standards, which they call as Industry 5. They're not classifying it as a revolution, but they are saying like, the 3, 4 are classified that they're going to change the way we work. But Industry 5 is more about bringing sustainability, human centricity, which is health related, if you talk about that, and resilience into the picture, into the business, into the production space, into energy supplies, into anything that we are talking about. Next up, very good. So what has industry done is it has brought EHS as at the center and front
of the whole factory operations or any kind of operations. So the way I see it is that you have operations in a factory and setting which are related to your revenue, right? So अगर मेरी motor चलेगी, मेरा pump चलेगा, I will be generating revenue with that. So that's one side of the business. The second is maintenance side, which Shams is an expert of, and that is associated with cost. So if I have to keep the machine going, I have to spend some money on it so that it keeps going. So that is my cost overhead, right? Machine hai, motor hai, pumps hai. We did go through regular maintenance. So they used to call it planned maintenance, then preventive maintenance, and now we are talking about predictive maintenance that you can actually, with the power of data, you can actually predict the next maintenance requirement. And EHS governance is associated with risk, basically, right? Why do we practice EHS is to avoid risks in the business. They basically bring risk, और हमारे जैसे मुल्क में risk की किसी को फिक्र नहीं होती, we just say कि जब होगा तो होगा, जब देखा जाएगा. But this is actually a big major part of the agenda of the global businesses. So they have brought this whole thing. They're saying that the three pillars now have to work together. So you have to work. You have to work for the revenue. You have to take care of your costs, but at the same time, you have to work to mitigate the risk. And risks are not just your business risk, but risks are now also global sustainability risks. And we see that happening more and more, new regulations coming in, especially in textile, especially in energy and other sectors, more and more new regulations are coming in, and they are enforcing them through taxation, duties, through, incentives, whatever that is happening. So the point is that all three of the things are important and have to be taken care of. Next slide, please. So broad focus areas remain like human centricity, sustainability, resilience. However, when we say that what are the solutions that they're looking for, like safety, so worker safety, health, a lot of conversations have happened. So I'll just quickly go through this and tell you, what you can do with the power of data and the tools that are available to you. So traceability, as I was telling you, like with the stricter regulations on textile, people are even calculating the chemical flowing into the drain, how much water you are recycling. If this is a piece of cloth that a buyer in Europe buys, they want to know which kind of cotton was used, what was the energy footprint, what was the the water recycling, water usage, consumption, blah blah blah. So their traceability has to be there. They are also looking at climate impact, and Dr. Nusrat had also talked about carbon footprint and carbon trading and all of this. So all these things are ये हो चुका है. आसिम साहब ने भी इस बात को बहुत emphasize किया था. ILO के figures हैं. The risk is too big and has to be mitigated. So अच्छा, अब हम बात करते हैं कि what is digital twin? As I told you earlier on, digital twin is creating exact replica of the operations into a digital space. So physical operations into a digital space. And why do we do that? Because we would like to have data-driven decision making. अभी तक कोई guesswork के ऊपर decision making है या previous practice के ऊपर decision making है. We are moving away from that and we are going towards data-driven decision making. उसके अभी मैं बताऊंगी आपको इसकी detail, लेकिन data-driven decision making से ये है कि you have the chance now with the real-time systems available that you can get the data from various sources onto a single platform. जैसे आसिम साहब ने भी सुबह बताया था कि लोग एक्सेल शीट है, 5 साल का डेटा मौजूद है, you cannot really analyze it. और फिर आप उस डेटा को एक साइलो के अंदर देख रहे हैं, एक खास स्पेसिफिक प्रोसेस के अंदर देख रहे हैं, लेकिन आप उसमें क्रॉस प्रोसेस नहीं देख सकते, क्रॉस मशीन नहीं देख सकते, प्रोसेस के अंदर इंटरनल, फॉर एग्जांपल कहीं टेम्परेचर राइज हो रहा है तो उससे सेफ्टी क्या है, कितना वेयर एंड टेयर है मोटर के अंदर, प्रॉब्लम क्या है, वो दैट ऑल थिंग you have to look at the big picture, which is possible through digital twin and not through standalone systems या Excel sheets जिसके ऊपर ही काम हो रहा होता है. इसी तरह real time visualization, analytics and reporting
तो आदिल साहब ने सुबह की बेस खड़ी कर दी कि लोग जो है वो जो सिस्टम बनाया था 20 स्पोक सिस्टम, उसमें आप जाते हैं तो फिर आप यू आर डिपेंडेंट ऑन द डेवलपर टू गिव यू रिपोर्टिंग और इस तरह की चीजें. बट व्हेन यू हैव द रियल टाइम सिस्टम, यू हैव द एबिलिटी टू सी what is happening in real time with analytics and alert systems. Then we go to the next part is the predictive analytics, obviously for risk aversion, and then simulations for creating safety measures and also recreating the incidents as well so that you get to the depth of the thing. So हमारा जो digital twin platform है, it can actually get data from various sources. So it is independent of the vendor. तो ये नहीं है कि आज मैंने स्नाइडर का ये लिया हुआ है और सीमेंस का ये लिया हुआ है और सीमेंस का एक प्लेटफॉर्म है तो सीमेंस की डेटा नजर आ रहा है और यहाँ स्नाइडर का नजर आ रहा है, फिर कोई यहाँ से डेटा लेगा और वहां से डेटा लेगा और मैच करेगा. तो the idea is that we should all be able to take the data from all sources and create one single source of truth. If we have one single source of truth, we can create one single pane of glass. That means that we can create one picture. We can create whatever is happening when somebody sets up a plant or you sets up a process. You do not look at कि ये जो है ना ये अलग चलेगी स्नाइडर की मशीन और सीमेंस का पीएलसी अलग चलेगा और जो है वो कंप्रेसर किसी और का लगेगा और वो अलग चलेगा और फिर जो है वो मेरी वेस्ट वाटर अलग मैनेज हो रहा होगा. You look at it everything in one single process. लेकिन डेटा आपके पास आज ऐसा अवेलेबल नहीं है जो आपको एक one single process दे सकता है. So you should be looking at tools that give you full access of data from all different sources. जब तक आपके पास पूरा डेटा नहीं होगा, you cannot create one full picture. So we have created a platform where you can actually get the data from all different sources. And you can read this whole thing. We can connect big sensors, PLCs, VFDs, fire alarms, doors, whatever you want to connect, you can connect it. You have one system of the whole thing. And then you can analyze the data and notify the staff based on performance KPIs, maintenance requirements, and EHS risk. ये तीनों चीजें आपको एक सिस्टम में से बनती हैं and they are not independent systems. So अगर आप कहते हैं कि वो जमाना चला गया कि मेंटेनेंस सिस्टम अलग होगा, एनवायरनमेंट की रिपोर्टिंग अलग हो रही होगी, क्योंकि अगर आपने सेफ्टी की रिपोर्टिंग करनी है दैट कैन नॉट हैपन without knowing the wear and tear of your motors and machines and compressors and all of this. अगर आपको कंप्रेसर का टेम्परेचर नहीं पता चल रहा है रियल टाइम में, that's a safety risk, right? But that falls under the domain of operations that they are actually using that and they would be operating it. But ये safety की consideration में है कि compressor के अंदर प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है और वो कब तक सस्टेन करेगा उस सर्टेन टेम्परेचर पे और प्रेशर के ऊपर. Single pane of glass, as I said, single source of truth is important. Single pane of glass is important that you get one picture of the factory, and that should be your aim when you are asked to do this. It should not just be कि अच्छा मुझे sustainability का data मिल जाएगा या safety का data मिल जाएगा या environment का data. If you are getting a safety data without operations data, if you don't know कि मेरा compressor कितने घंटे चला है, तो आपको कभी भी पूरी पिक्चर नहीं पता चल रही है. So real time visualization, analytics report. आजकल क्या है कि data again is in silo. Siemens का मैंने product लगाया हुआ है, वो मेरे Siemens पे ही पता चलेगा. Schneider का product लगाया हुआ है, Schneider पे पता चलेगा. दोनों चीजों को कोई combine करने का तरीका नहीं है. Other than कि कोई मैनुअली रिकॉर्ड करता है, एक्सेल की शीट बनाता है, उसके बाद उसको पावर बीआई में डालता है और 15 दिन के बाद वो आपको इस फॉर्म में मिलता है जो कि यूजेबल है और उस वक्त तक बहुत सारा पानी सर से गुजर चुका होता है. तो आइडिया ये है कि आप रियल टाइम एनालिटिक्स कर सकते हो बिकॉज जितनी आपकी इनएफिशिएंसीज हैं, जितने आपके प्रोसेस के अंदर लूप होल्स हैं, वो आप रियल टाइम में आइडेंटिफाई करें और रियल टाइम में फिक्स करें. प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऑफ रिस्क एवर्जन. तो इस तरह के डैशबोर्ड आप बना सकते हैं. डैशबोर्ड के ऊपर भी आपके सामने बात की थी. डैशबोर्ड बनाए, रियल टाइम इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर आप डेटा मॉडल्स बना सकते हो. तो पहले ये कि मेरी मशीन प्लान मेंटेनेंस में ये था कि मैंने जो है वो 5000 घंटे के बाद अगर मेरी मोटर चल जाएगी तो उसको मैंने करना है या हर 3 महीने में जाके मैंने मेंटेनेंस करनी है. दैट वाज प्लान. Preventive में ये था कि I will only look at things that have the higher possibility of going or failing, right?
प्रिडिक्टिव ये है कि यू आर एबल टू प्रिडिक्ट कि ये कब होने वाला है, सो दैट यू कैन प्लान दिस डाउन लाइन। बहुत सारी चीजें लोग एआई भी लेकर आते हैं, इसके अंदर मशीन लर्निंग भी लेकर आते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें जो है कैन एक्चुअली डू विद सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, उससे एआई वगैरह भी आ जाती है इसमें। लेकिन बेसिक आइडिया ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स और रिस्क अवर्जन। तो प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने अपनी मेंटेनेंस के हवाले से करना है, मेंटेनेंस फेलियर इज गोइंग टू टेक the form जो उसकी होगी प्रिडिक्टिव maintenance failure की, that is going to be a safety incident, right, or a risk. तो मैं उसको कैसे अवॉइड कर सकती हूँ? That kind of models are available. ये डिफरेंट वेंडर्स के प्लेटफॉर्म में भी है, हमारे उसमें भी है कि आप जो है वो मॉडल कर सकते हैं। ये मॉडलिंग मेरी लाइक भी कंस्ट्रक्शन मॉडलिंग होगी, ये तो फेज 1 फेज 2 स्टेज मॉडलिंग है, सही मॉडलिंग है। देखिए जो है ना मशीन स्पेसिफिक, प्रोसेस स्पेसिफिक मॉडलिंग है, और उसके अंदर एनोमली होगी और स्कीम्स प्रोटेक्शन होगी। एग्जैक्टली। तो लाइक जैसे आप नॉर्मल प्रिवेंटिव में या प्लान में करते हैं, एक आप उसको बना सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये है कि फॉर एग्जांपल आपको रियल टाइम में कंप्रेसर का टेंपरेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है या प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, which is going to cross a certain threshold, right? If it goes on, you know, at that level for next 5 minutes, next 10 minutes, तो आप वो वाला मॉडल कर सकते हैं। या अपने सॉफ्टवेयर से या अपने प्रोसेस के नहीं हमारा, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो दो मशीन्स हैं वो सेम काम नहीं करती, ठीक है। बराबर सेम मॉडल की भी रखी हुई होती है, या आपका भी एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसमें कोई भी इस तरह का मेंटेनेंस का काम हो चुका होता है जिसकी वजह से यू कैन नॉट इवन अप्लाई मॉडल ऑफ वन मोटर टू द अदर विदाउट हीटिंग इट, क्योंकि उसमें कोई या तो स्विच लग गया होता है या कोई ऐसी मेंटेनेंस होती है जो किसी ने कभी लॉग भी नहीं की हुई। हम ऐसी जगहों पे भी गए जहाँ पे के उनका ख्याल था कि उनके पास फला ब्रांड चल रहा है इस मशीन के अंदर और ये सारी मशीनें सेम ब्रांड के वेंडर पे चल रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। एनवायरमेंट भी नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरे बिल्कुल सही कहा है फारूक ने, अगर आपका एक कंप्रेसर एक आप उसको फार्मास्यूटिकल में यूज कर रहे हैं वर्सेस उसको आप किसी और टेक्सटाइल में यूज कर रहे हैं, स्टीम जनरेशन के लिए कहीं यूज कर रहे हैं, तो एनवायरमेंट बहुत ज्यादा वर्किंग एनवायरमेंट, तो यू हैव टू बिल्ड। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास डेटा सोर्सेज आपके पास होनी चाहिए जिसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपने मॉडल के अंदर। सिमुलेशन देखा है फर्स्ट डैशबोर्ड में कुछ हाँ, मैं आपको रियल टाइम दिखा सकती हूँ अगर वो मेरा कनेक्ट कर ले। So even your predictive analytics with AI, that is system based, or do you have an advisory? What ratio right? तो आप दोनों मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो आपको हर जगह जो है वो एडवाइजरी और एआई टाइप का मॉडल नहीं चाहिए, ठीक है। आजकल तो इस तरह भी हो गया है कि वो सिंपल बी इज इक्वल टू आई आर के लिए क्या एआई इस्तेमाल करने लगते हैं, ठीक है। तो वो नहीं करना है हमने, और ये इसको जज हमने इस तरह से करना है कि हमें कहाँ पे जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लाइव भी दे दूंगी कि हमने एक जगह काम किया था जहाँ पे कि ये प्लास्टिक की थिन फिल्म्स बनाते हैं, रैपर्स, ठीक है। वो कोटिंग होती है, उसके बीच में ग्लू जाता है, तो एक प्रिंटेड शीट होती है और उसके ऊपर एक लेमिनेशन शीट होती है, बीच में एक ग्लू होता है, जो कि आप बेसिकली ये जो आपका ये वाला है ना, इवन ये इसमें भी ये दो लेयर्स होंगी, या ये जो प्रिंटिंग है ये 2 लेयर्स होंगी। टिश्यू पेपर के बॉक्सेस हैं, चिप्स के रैपर्स हैं, दे आर बेसिकली 2 लेयर्स ग्लूड टुगेदर, और इतना थिन ग्लू होता है कि आपको नजर नहीं आता। लेकिन अगर वो ज्यादा थिन हो जाएगा तो रैपर निकल जाएगा लेमिनेशन शीट से, और अगर वो मोटा हो जाएगा तो आपको मोटे मोटे ब्लॉक्स नजर आने लग जाएंगे, ठीक है। तो वो कैसे आप, और ग्लू जा रहा है पाइप के अंदर से, एक जगह से रेजन जा रहा है, एक जगह से फंडर जा रहे हैं, वो प्रिंटिंग मशीन के ऊपर रोलर के ऊपर जाके वो मेल्ट होके ग्लू की लेयर आती है। अब इसमें अगर आप फ्लो मीटर लगाएंगे और आप कहेंगे कि मैं रेजन और साल्टर का मेजर करना चाहता हूँ, फ्लो रेशो, और फ्लो मीटर पे करेंगे तो फ्लो मीटर में भी वही प्रॉब्लम आएगा जो कि आपके पाइप में आ रहा था, विच इज क्लॉगिंग, ठीक है। तो हमने इसको फिर मशीन के जो उनकी मोटर्स थी उसके ऊपर मॉडल किया, ठीक है। RPM obviously depend on, you know, energy depends on the RPM, और RPM उसके चेंज होते हैं if there is a clog। तो इस तरह के मॉडल भी हमने बनाए हैं जिसमें कि आप प्रोसेस समझते हैं, ये प्रोसेस है, इसमें कहाँ पे आप इंजीनियरिंग फिजिक्स के प्रिंसिपल लगा सकते हैं और आप कैसे मॉडल डेवलप कर सकते हैं।
और हमने मेडिकल डिवाइसेस के साथ इंटीग्रेशन नहीं की, ठीक है। द रीजन बीइंग कि हमारा फोकस जो है प्लेटफॉर्म के साथ यूज हो सकता हो, बट हमने इसके साथ जो तीन हमारे केयर फोकसेस हैं, एनर्जी मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल और क्लाइमेट। How much difference you have in the Schneider kind of business? Because देखिए स्नाइडर का मैंने अभी जैसे आपको पहले बताया, स्नाइडर वुड ओनली फोकस ऑन स्नाइडर हार्डवेयर, ठीक है। जब आपने स्नाइडर का हार्डवेयर लगाया है तो आप जो उनका सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ स्नाइडर से डेटा लेगा। I do not agree on this because even they have done Integration. medical devices also and medical devices from सही है, तो लेकिन जब वो फैक्ट्री का पूरा वो ले रहे होते हैं, वो उन्होंने उनके साथ पार्टनरशिप की होगी, कोई उसके वो अलग चार्जेस लेते होंगे। The idea is that you get the data from one single, you have to create one single box, ठीक है। हो सकता है उन्होंने भी कर लिया, लेकिन उन्होंने क्या सबके साथ किया हुआ है या किसी खास मेडिकल डिवाइसेस के साथ किया हुआ है या implementation पाकिस्तान में हाँ, मैं भी आपको दिखा predictive level पे है हाँ, जहाँ ये you आप- can start integrate the machine integration with the predictive and you have integrated this system this EHS that the work orders are generated automatically. ये हमने शब्द के साथ मैक्सिमम के साथ करते हैं, Yeah. मैक्सिमम के साथ integration। You're seeking your certificate. लोहा के बराबर ही the same. ठीक है, लोहा के बराबर भी हो सकता है। Actually, आपको इतना कन्वेंस समझ करते हैं ना कि linked things because when you talk about Internet of Things, so I would take it as a different manner because you know everything can be controlled on it, right? You know, like I can, but going to the internet and if you talk about the healthcare and safety and cybersecurity, then you know then you're अच्छा सिक्योरिटी एस्पेक्ट में then you have controls because you're controlling sensitive mission critical services. And if you have access from outside the internet, that means then you are like very much prone to cyber security. And then the confidence level for the customers, you know, is downward. They're better to go with the IoT, a complete building IoT. When I say IoT, IoT is not only control, IoT means integrating many other devices other than the building device. तो आप एग्जैक्टली तो यही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स गिव यू द पॉसिबिलिटी, आपका स्ट्रक्चर इस तरह से होना चाहिए कि आप डेटा कहीं से भी ले सकते हो और उसको स्ट्रक्चर में टाइम एक टाइम पे आपको मुख्तलिफ इवेंट्स मिल रहे हो। ये ना हो कि मेरा डेटाबेस में स्ट्रक्चर ही नहीं था कि मैं टेम्परेचर ले सकती थी इस टाइम का या इस टाइम पे कोई मेडिकल डिवाइस का डेटा ले सकती है व्हाटएवर, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि दैट इट कैन इंजेस्ट डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड क्रिएट वन पिक्चर फॉर दिस। As far as the security question is concerned, so yes, so cloud platforms are highly secure. ठीक है, जैसे आपकी वीजा की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन हो रही होती है, क्लाउड बेस्ड हो रही होती है, वो भी इसी तरह से ये भी क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस हाईली सिक्योर होते हैं, ठीक है। इनके ऊपर जैसे हम लोग अब तो IBM ने अपना IoT प्लेटफॉर्म डेप्रिकेट कर दिया है, लेकिन हम लोग IBM के ऊपर भी वर्क करते हैं एक जमाने में, ठीक है। सो द क्लाउड सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स ऑफ IBM आर एप्लीकेबल टू अस, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जब भी हम कोई डिवाइस इंटीग्रेट करते हैं, वी प्रोवाइड सर्टिफिकेट दैट नीड्स टू बी ऑन दैट डिवाइस, ठीक है। ये नहीं है कि कोई भी आगे ना साइन इन किया और कहीं से डिवाइस से डेटा आने लगा। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये मतलब नहीं है कि आपने कोई भी डिवाइस ले ली, हम कहते हैं हम डेटा ले सकते हैं, बट डिवाइसेस दैट वी ऑथराइज, राइट, द प्लेटफॉर्म ऑथराइजेस। तो प्लेटफॉर्म डिवाइस को भी क्रेडेंशियल्स देता है लॉगिन के लिए और डिवाइस को सर्टिफिकेट्स भी देता है, ठीक है। जो सर्टिफिकेट होता है, सिक्योरिटी का सर्टिफिकेट होता है, एन्क्रिप्शन का सर्टिफिकेट होता है, यू से कि ये वाला सर्टिफिकेट है, डिवाइस इज सर्टिफाइड, दे कैन ओनली कनेक्ट टू माय प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिसके अंदर क्रेडेंशियल्स भी होंगे। तो अगर आपके पास 100 डिवाइसेस हैं और इनकी 200 डिवाइसेस हैं, तो डजंट मीन कि देयर डिवाइसेस कैन कॉन्टैक्ट योर डिवाइस विदाउट एनी काइंड ऑफ ऑथराइजेशन। Options or with the aggregation and authorization. जी, वो चीजें दी जाती हैं आपको, पहले आप ऑथोराइज होंगे उसके बाद आपको ऑथेंटिकेट और फिर आपका एक्सेस। हाँ मोस्ट सिक्योर जी, तो क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स के अंदर ये होता है और डिवाइस लेवल पर भी है, नॉट जस्ट द यूजर लेवल कि आपको पहले ऑथराइज होंगे और फिर आप ऑथेंटिकेट होंगे, बल्कि डिवाइस लेवल पर, ठीक है। कोई और सवाल है? Instrumentation identifier will be missing. For example, आप किसी का कसर पे लगाने जा रही हैं, instrumentation मौजूद नहीं है, बाहर के कसर को, वो instrumentation के identification और sorting, इसलिए आप लोग support हम कर सकते हैं, बट आइडियली हम चाहते नहीं है ये काम करना।
ठीक है, कस्टमर्स कहते हैं कि आप ही ले आए, बट दिस इज नॉट आवर एरिया। डेटा पर जानकारी अवेलेबल है, जहाँ से प्रेडिक्शन नहीं तो फिर वो आप अपने ऑटोमेशन कंपनी होगी ना जो जिसके साथ आप काम करते हैं, आरई हो गया या कोई और हो गया जो ऑटोमेशन का आपको सप्लाई करते हैं, तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं। मेरा पॉइंट ये था कि आप कंप्रेसर के कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे आपकी फीचर पॉइंट्स जरूरी है, वरना आप एनालिसिस नहीं, वो आइडेंटिफिकेशन होगी, वो हम आइडेंटिफाई करके देंगे आप। नेक्स्ट स्टेप इज हाँ। कि कंपनी को गेज करके उन डेटा पॉइंट्स पे ये भी पॉसिबिलिटी पुरानी मशीन्स में आती है कि वहाँ डेटा पॉइंट लगी ना सके। हाँ। सही है, तो ये पूरा प्रोसेस हमने दो हिस्से में डिवाइडेड है। इंटीग्रेशन करने के लिए आपको ऑन बोर्ड लेके ही बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं, ये हमने कहीं पे करने की कोशिश भी की है, बट आई थिंक जो ऑटोमेशन कंपनीज हैं दे हैव बेटर एक्सेस, दे हैव बेटर प्राइसिंग, दे हैव बेटर ऑप्शन, सर्विस अवेलेबिलिटी फॉर ऑल ऑफ दीस थिंग्स। तो वो आपको पूरा पैकेज देते हैं फॉर द ऑटोमेशन साइड, वी गिव यू द फुल पैकेज ऑन द डेटा। कुछ ऐसे ऑप्शन दे देते हैं इसकी जरूरत भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरी मशीन है, मैंने बोर्ड लिए इतनी इंटीग्रेशन लेके आ गए जो कि आपके लिए से 3 की जरूरत है, वो तो पूरा पैकेज सेल आउट करने तो आप बायर है ना, आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। मैं तो आप मिनिमम रिक्वायरमेंट हाँ ज़्यादा डेटा पॉइंट बनाने से मुझे है। बिल्कुल, तो आप उनको कह सकते हैं ना अपने वेंडर को So you then you link like your thing like लिंक थिंग्स something or another. so do you only provide the application support or you provide the complete integration and then हम चाहते हैं हमारी मशीन बातें करें। आपकी मशीनें आपसे बातें करेंगी। अगर आपकी मशीन थोड़ी सी स्लाइड पीछे ले जाएगा, वो जो नीली स्लाइड थी ना पहली वाली मेरी, और पीछे we also want them to be टॉकिंग टू ईच अदर to like in condition based. So हाँ। my condition is not okay. I'm और fever. Come and देखिए मैं यहाँ अगर ये काम हो गया है ना तो मैं ये काम करने आ गई, ठीक है। बेसिकली आपकी ऑटोमेशन हो गई है, आपके पास कन्वेयर बेल्ट है जिसपे से प्रोसेस हो रहा है, या आपके पास वॉल्व लगे हुए हैं, कंप्रेसर लगे हुए हैं, मतलब कोई काम आपका जो है ना वो ये वाले प्रोसेस में गुजर गया है, PLCs वगैरह लगी हुई है, इसके आगे वी वुड लाइक टू वर्क ऑन द डे, ठीक है। क्योंकि जो मार्केट में गैप है वो ये है कि ये तो बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, मैं आपको बहुत सारे नाम बता देती हूँ जो लोग ये कर रहे हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन ये वाली साइड को समझ के रिलायबली इधर डिजिटल ट्विन क्रिएट करना, ये वाला काम जो है ना वो दैट्स लैकिंग, और यहाँ हम सपोर्ट हैं, ठीक है। तो आपकी मशीन्स बिल्कुल बात कर सकते हैं जब वो इस स्पेस में यहाँ से आप यहाँ जंप करें, ठीक है। अगर ये नहीं है, दिस इज नॉट रियली आवर डोमेन, हम इसमें कम्पीट भी नहीं कर सकते, हम आपको अच्छी प्राइस भी नहीं दे सकते इस वाले मॉडल के अंदर, दैट यू नो वी कैन डेफिनेटली गिव यू फुल सपोर्ट ऑन दिस, ठीक है। ये और ये हाँ जी बेसिकली इंटीग्रेशन तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि नहीं है ना, ये हमने सॉल्व कर लिया है ना। हाँ यही तो चैलेंज हमने सॉल्व किया। कंट्री कंपनीज की चीजें लगी हुई हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आना और एक डैशबोर्ड टाइप से बनाना। हाँ ये हमने किया है, एक DLC किसी और का है, DLC किसी और का है, किलोमीटर किसी और का है, और हाँ तो CCTV किसी और का, एनआरजी किसी और का, NDR किसी और का लगवाना है। इसको किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, क्या लोग ऐसा? तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, नीचे जाइएगा शायद इस वाली स्लाइड में, नहीं तो दूसरे में और जाइएगा और जाइएगा और जाइएगा और जाइएगा, ये तो हमने कवर ही कर लिया था, सिमुलेशंस कर सकते हैं। तो मैं एक बात बताना चाह रही थी, इसको कवर कर लेते हैं, मैं आपको फिर वो स्लाइड आ जाएगी तो मैं आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ कि जब हम इंडस्ट्री 4 में होते हैं और जो इंडस्ट्रियल IoT या डिजिटल ट्विन की जब बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये सारे वर्टिकल्स हैं जो कि मुख्तलिफ कंपनीज वैसे प्रोवाइड कर रही होती है, जैसे आपको हार्डवेयर वगैरह जो है वो अलग कंपनी प्रोवाइड कर रही होती है, नेटवर्क की कोई और कंपनियां आ जाती हैं, सॉल्यूशंस, डैशबोर्ड, फिर इंटीग्रेशन अगर आपने करनी है, जैसे आप कह रहे थे एक हार्डवेयर साइड पे इंटीग्रेशन है, दूसरी आपकी सॉफ्टवेयर साइड पे भी इंटीग्रेशन है जो कि API से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने अपने इंडस्ट्रियल सेटअप को अपने ERP के साथ करना है, SAP के साथ इंटीग्रेट करना है, तो मैं कैसे करूंगी? Oracle के साथ करना है, IBM Maximo के साथ करना है, मेंटेनेंस सिस्टम के साथ, तो कैसे करूंगी? तो API इंटीग्रेशन होगी, ठीक है। तो ये devices read करती है आपकी कोई field devices because there are हाँ हाँ अभी मैं अभी चलते हैं
आगे वाली स्लाइड पे। तो व्हाट वी हैव डन, जो आपका सवाल था और आपका भी, कि हमने ये सारी इंटीग्रेशंस करके अपने प्लेटफॉर्म के अंदर डेवलप करनी है, ठीक है। तो एपीआई इंटीग्रेशन हो सकती है, डिफरेंट हार्डवेयर इंटीग्रेशन हो सकते हैं, गेटवे इंटीग्रेशन हो सकती हैं, यूजर व्यूज बन सकते हैं, डैशबोर्ड व्यूज बन सकते हैं, और आगे चले तो आपके जो है ये हमारे पार्टनर्स की लिस्ट है, इट इज ग्रोइंग। तो इसमें टेल्टोनिका है जो कि इंडस्ट्रियल गेटवे प्रोवाइडर है। इसमें आप पीछे मतलब ये आप इनके इंडस्ट्रियल जो मॉडबस हो गया, सीरियल हो गया, RS-232 हो गया, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स टेल्टोनिका की डिवाइसेस सपोर्ट करती है। इनपुट दे गिव आउटपुट एज इंटरनेट या आईपी ट्रैफिक, ठीक है। तो वो हमारे सिस्टम में आ जाता है। टेल्टोनिका के साथ हमने एक्सटेंसिव टेस्टिंग की हुई है with our their devices and our platform. उनकी काफी डिवाइसेस हमारे साथ बनी, ठीक है। सेम थिंग विद सीमेंस। सीमेंस की पीएलसी है, अगर उसमें मॉडबस अवेलेबल है या वो डायरेक्ट अपने माइंडस्फेयर उनका प्लेटफॉर्म है, माइंडस्फेयर भेज दिए, माइंडस्फेयर के साथ हमारी इंटीग्रेशन होती है, डिवाइसेस के साथ हमारी इंटीग्रेशन होती है, ठीक है। तो आप दोनों यू कैन डू टू वे, अगर जैसे आपने सीमेंस का कोई एक पूरा मॉड्यूल लिया हुआ है, पीएलसी भी ली हुई है और प्रोसेस भी उसमें उनके कंपोनेंट्स हैं, मोटर्स हैं, जो भी है वो आपने लिया हुआ है, डेटा आपका उधर जा रहा है, अगर आपने उनसे लिया हुआ है या आप हमारे पास भेजते हैं, दैट्स द सेम थिंग। हमारी उनके साथ इंटीग्रेशन हुई है, तो विजुअलाइजेशन हम करके दे देंगे। जो मॉडलिंग है, जो उन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरर ने अपनी स्पेसिफिक डेटा मॉडलिंग की हुई है, प्रोसेस मॉडलिंग की हुई है, वो हम उनसे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अभी कहीं की फिजिकल प्रोटोकॉल available है, so you only need that, rest you can do. हाँ, So it doesn't matter whichever controller it is. बिल्कुल, मतलब अगर not dependent on the controller. तो वो अगर आपका इस पे है तो वो backnet 12, हाँ, या बोल एनालॉग भी है ना, तो उस पे भी होता है। Okay, इंजेक्शन सिमिलर से करनी है, सीमेंस है, फिनिक्स कांटेक्ट है, फाइब्यूलर है, एलन ब्रैडली। एलन ब्रैडली के साथ भी तो होता है। अगर हम अगर आपके पास आते हैं और अगर हम सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, वी विल कांटेक्ट और बेसिक इनके साथ लाइक रियल अगर हम आपको एक MRI मशीन पे और MRI पर फिजिकल लेयर दे दें, कैन यू पिक डिफरेंट अलर्ट्स या डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स है ऑफ एनी ऑफ द अगर वो मशीन में जनरेट हो रहे हैं, और हम आपको लाइजॉल करा दें किसी बिल्कुल एनी ऑफ द मैथमेटिक्स मात्रा किसी सही है। ये काम, ये दिस इज व्हाट वी स्पेशलाइज इन, कि डेटा हम किसी भी सोर्स से ले सकते हैं, ताकि हम एक सिंगल, जैसे अगर आपके पास एडवर्ड आपका ताल्लुक किधर से है, आपका यूनिवर्सिटी से, तो ये है कि अगर आपके पास से आपने सीमेंस की लिए है, वैरायटी की फिलिप्स की लिए है, टोशिबा की लिए है, यू वांट टू कंपेयर या उनके सबके अलर्ट्स एक जगह स्टैंडर्ड के साथ स्टैंडर्ड के साथ, हां, और की which have been branded well known Philips. ठीक है। But we had a lot of challenges because both the sides, especially the manufacturers of these giant, they normally, there are a lot of challenges. वो In getting the data. So, but we can, Shamsa, maybe we can work. That was I was going to propose maybe next week or after some time set करके we can go there and have a detailed meeting on this subject. तो अच्छा, मेडिकल डिवाइसेस आपका ये मतलब था, इंस्ट्रूमेंट्स जो ये साइड है, मैं समझी कि वो स्पीकर हो गया या इस तरह की डिवाइसेस, टेंपरेचर मॉनिटर, वो भी हो सकते हैं। So many of the devices, like for example, we have a building which is IoT completely. जो आपका प्राइवेट PCP, I have done that project. So we have a complete building plus the medical devices are integrated. So that was done with the airport Schneider and many other manufacturers. So अब हम कहते हैं कि जी suppose we want to scale that further and you have a platform to do this. So data is how you do it. So we have also integrated that in the end for NS. So we can deal suppose a medical device that has a depletion of battery, which is 50%. The engineer gets an alert. जी फलाना machine का जो ना आपका battery जो इस वक्त deplete हो गई, go and attend that. So we want a medical device to talk to us, so that we don't reach to them, they tell us what to do. बिल्कुल ये हो सकता है। इनके यहाँ सोफिया इन्फॉर्म चल रहा है ना, उसके साथ भी इंटीग्रेशन, उसके साथ भी इंटीग्रेशन और के साथ, तो इस तरह से। इसके बाद अगर हम क्लाउड पे जाएं तो जैसे आपने सिक्योरिटी के हवाले से भी बात की थी, तो देयर ऑप्शंस, राइट।
अगर आपको ऑन प्रेम चाहिए या चाहते हैं इसको आप में रखें, आप में रख सकते हैं हमारे हाँ लोकल मतलब आप ऑन प्रेम के रखिए, वो होगा शायद वायरलेस के ऊपर ही या वायरलेस के ऊपर प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है। आप सेटअप को अपने पास कर सकते हैं। और हमने कराची ग्रीन लाइन के साथ किया, वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, दे डिडंट वांट एनी क्लाउड, तो आपने अपने उनके ओसीसी में कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह की बात है कि आपके साथ भी हो सकता है। चाइनीज हमारा कस्टमर है, उसने कहा मुझे IBM में नहीं देना, गूगल पे नहीं देना, फिर अपने हुआवे से बात की कि दे देना हुआवे, ठीक है। तो we became partners with Huawei. तो these are the possibilities that exist. Nokia है, AWS है, Microsoft Azure है। लोकल अगर आप कहते हैं पाकिस्तान में क्लाउड है तो रैपिड पार्टनर, तो आप उनके साथ ये आपको बेस्ट प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ आपने कोई ऐसा काम किया हो which you want to showcase कि ये चीज हम कर। हाँ मैं बहुत सारी आपको दिखा देती हूँ। ये वाले ऊपर ले गए, मैं लाइव भी दिखा सकती हूँ आपको, अगर वो मेरा कंप्यूटर कर ले। और बचाओ ये सारे हमारे बनाए हुए। ये चाइना में प्लांट है एडिबल ऑयल का। ये which you can show लाइव real time that अगर वो दे देंगे मुझे, अगर इंटरनेट मैं आपको कुछ और चीज, हाँ मेरे पे होगा ना मेरा सिस्टम। ऐसा फील हो जाता है कि this is real life। मैं लाइव डेमो दे देती हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें का डेमो दे सकती हूँ। हमने बहुत सारी इंटरनेट दो इनको। हाँ सही बात है, इंटरनेट इंटरनेट कनेक्टेड है मेरा। हाँ इनके हमारे पास अच्छा वाला है केबल। नहीं मेरा ख्याल है चल रहा है वाईफाई। मैंने अभी नवीद साहब को भी दिखाया था पूरा डेमो। क्लाउड बेस्ड, हाँ ये सारा कुछ क्लाउड बेस्ड है। इस पे अगर कनेक्ट कर मैं ये वो करना पड़ेगा, थोड़ी देर उनको रोक देना, उनको कह दें कि, या उनको आप इस पे कैमरा लगा के दे दें। एक सेकेंड, इंटरनेट अगर आपके पास अच्छा है तो मैंने वैसे हवारी टावर्स वाला यूज किया है। मैं पहले हवारी वाला कर लेती हूँ। अभी मैंने नवीद साहब को दिया था तो ये कुछ मैंने आपको बताया था कि चाइनीज प्रोजेक्ट हमने किया, ये उनका डेटा रियल टाइम में आ रहा है। ये आ गया, ठीक है। तो इसमें ये है कि ये बेसिकली दे मेक राइस ऑयल, ठीक है। तो अब इनका ये कि ये एक डैशबोर्ड बने। अब अगेन वही बात है कि आपको कुछ और चाहिए, आपके जो अंडर काम कर रहे हैं उन्हें कोई और चाहिए, जो मशीन ऑपरेटर है उसको कोई और व्यू चाहिए। तो इसको मैं पूरा समझा देती हूँ आपको कि इनका ये डेटा रियल टाइम आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये चेंज भी हो रहा है। ये आपके पास यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि ये कब अपडेट हुआ है, ठीक है। अगर मुझे इसकी लैंग्वेज चेंज करनी है तो मैं लैंग्वेज यहाँ से चेंज कर सकती हूँ बगैर किसी IT वाले को बुलाए हुए। और डिटेल व्यू देखना है तो ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे उनकी फैक्ट्री में था, ठीक है। तो वो एक व्यू है मैनेजमेंट के लिए, CEO के लिए। ही डजंट नीड टू नो दिस होल कलर स्कीम या ये सारा कुछ, लेकिन ये कलर स्कीम वगैरह उनके एक्चुअली पाइप्स के भी यही कलर्स हैं, ठीक है। सो दे सी दैट। फिर आप कहते हैं कि मुझे ना डिटेल्ड व्यू चाहिए किसी भी, तो ये सारे टैंक्स, जितने सारे टैंक्स थे कलर कोडेड, रॉ मटेरियल इज बिट डार्कर। उसके बाद उनका ये डिफरेंट फ्लो मीटर्स आ गए, डिस्टिलेशन का टेम्परेचर क्या चल रहा है, कंडक्शन का टेम्परेचर, तो ये सारी चीजें उनके पास यहाँ आ रही हैं। यू कैन सी दैट कि ये रियल टाइम में अपडेट भी हो रही हैं। यहाँ जाएंगे आप, इसको जो है वो
सॉरी लाइव इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, आपने हिस्ट्री करनी है, आप हिस्ट्री देख सकते हैं, कैसे टेम्परेचर राइज हुआ है और फिर ड्रॉप हो रहा है। आप कोई और डेट टाइम सिलेक्ट कर लें, 23rd को कर लें और इसको भी 23rd कर लें, सॉरी सॉरी ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ ड्रॉप हो रहा था, ये राइज हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। आपको इसको कंपेयर करवाना है किसी भी चीज से, तो आप वो भी आ जाएगा। अगर मैंने टैंक 6 सिलेक्ट किया है तो टैंक 6 के लेवल के साथ मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ लाइव। ठीक है, आपके केस में टोशिबा की मशीन और किसी और की मशीन को मैं कर सकती हूँ, उसे सीमेंस की हो गई। ये मेरे पास इसकी एक बेसिक एनालिटिक्स आ गई, मिनिमम क्या था टेम्परेचर, मैक्सिमम क्या था, एवरेज क्या रहा है इन दिस प्रोसेस। मुझे इसको वीकली देखना है तो मैं वीकली भी देख सकती हूँ, मंथली देखना है तो मंथली, डेट चेंज कर देती हूँ मैं इसकी। ये मैंने ये दे देगा। एक्सपोर्ट करना है तो एक्सेल में एक्सपोर्ट का भी ऑप्शन है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। से एक और दिखा देती हूँ मैं, ये रियल मशीन चल रही है, ये नेशनल फूड है, कन्वेयर बेल्ट वाला है। ठीक है, तो ये कन्वेयर बेल्ट पे अभी इसमें भी ये एक जगह से सोर्स नहीं है, काउंटर अलग है प्रोडक्ट का, वीएफडी अलग है, पावर सोर्स अलग है, ये सारी इंफॉर्मेशन आ रही है 3 डिफरेंट जगहों से एक मशीन की। नेशनल फूड्स का रियल टाइम है ना ये रियल टाइम। ठीक है, मशीन बंद है, इसका यही एक और व्यू है काउंट का। अगर मुझे व्यू देखना है इसका, मिनट बाय मिनट काउंट का व्यू, तो वो भी आ रहा है मेरे पास। इन्वेंट्री भी हो जाएगी इससे। ये तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा ये तो अच्छा खासा बना हुआ है सिस्टम है। सॉरी, How do you do that? Asset tracker भी एसेट ट्रैकिंग भी, हाँ asset ये इनके सारे बल्कि ये मैं आपको इधर दिखा देती हूँ, इनके पास शायद ज्यादा बेहतर। ये इस तरह का आप व्यू भी बना सकते हैं। ये एग्री ऑटोज का व्यू है, जो उनकी टीम, सॉरी, तो उनकी ये सारी एफिशिएंसी कैलकुलेशंस आ रही हैं। उनका ये आ रहा है, उन्हें एक्चुअल कितने बनाने थे, उन्होंने कितने बनाए, उनको कितने बनाने चाहिए थे, कितना टारगेट मिस हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन रियल टाइम में आ रही है। डिफरेंट डैशबोर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कोई इनपुट दे रहा है या ये इनपुट दे रहा है? ये इनपुट भी ले सकता है, कंट्रोल करना हो, फॉर एग्जांपल आपको मोटर को ऑन ऑफ करना हो, ठीक है, या इधर से कोई ट्रिगर करना हो ईआरपी में, तो ये भी कर सकते हैं आप एपीआई के थ्रू। ठीक है, इसमें पैरेलल चल सकता है एसएपी या कोई और सॉफ्टवेयर के लिए? पैरेलल भी चल सकता है, इंटीग्रेट भी हो सकता है। ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं डैशबोर्ड, अब ये नया वर्जन है, इसमें मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये मैंने वीडियो बनाई हुई था कि मैं बार बार खड़े होकर डैशबोर्ड ना बना रही हूँ। हाँ, ये आप देख लें, वीडियो चल रही है। चल रही है? हाँ, आप हमारे लॉगिन करें प्लेटफॉर्म के ऊपर और आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना डैशबोर्ड खुद क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको स्नाइडर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है, आपको हम फैसिलिटेट कर देंगे, आप अपना डैशबोर्ड खुद बना लें, जिसमें कि यहाँ पे वो उसने सिलेक्ट पहले किया कि वो कोई इमेज है, अभी वो सारी जितना डैशबोर्ड जो भी बनाना है उसकी लेबल्स डिफाइन कर रहे हैं कि ये कौन से। प्रोग्रामिंग है और ड्रैग एंड ड्रॉप से। जी, कोई प्रोग्रामिंग नहीं है, लो कोड प्लेटफॉर्म कहलाता है ये सारे एसेट्स बने हुए हैं और नए एसेट्स आप ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप कलर चूज कर सकते हैं, सब है। मैं अभी आपको वो भी वीडियो दिखा देती हूँ। मेंटेनेंस मेंटेनेंस की सॉफ्टवेयर के देखिए लाइफ ये 2 तरीकों पे चलता है। अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी फैक्ट्री के लिए लेते हैं, हमारे यहाँ जो पावर के इशू है, हाँ, पावर बंद हुआ फिर स्टार्ट हुआ, तो हाउ मच टाइम इट विल टेक? नहीं ये तो क्लाउड बेस्ड है, ये क्लाउड बेस्ड है, हाँ ये क्लाउड बेस्ड है। ठीक है, इंटरनेट पे डिपेंड करता है, डेटा आपका राउटर कनेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे बेसिक आइडिया ये कि आप अपना डैशबोर्ड खुद क्रिएट करें, डिवाइसेस आपने जो की हुई हैं वो इंटीग्रेट करें,
और सिस्टम आपका चल जाएगा। सही है। अगर वो आप कह रहे हैं कि एपीआई इंटीग्रेशंस, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मॉडलिंग भी कर रही है। हाँ, मैं अभी आपको एक चीज और दिखाती हूँ कि आप ना अपना रूल इंजन बना सकते हैं। ठीक है, तो वो भी मैं, ये एपीआई इंटीग्रेशन है, इसमें भी थोड़ा एक हद तक आप देख सकते हैं कि उन्होंने रूल बताया हुआ कि एपीआई कब ट्रिगर होगी। कि अगर फॉर एग्जांपल आई डोंट नो कोई लेवल किसी पे जाएगा, आपने, सॉरी तेजी से गुजर गया ये, दोबारा दिखा देती हूँ, एक्सप्लेन करती जाती हूँ मैं। तो ये एपीआई इंटीग्रेशन जितनी होंगी, जैसे इन्फॉर के साथ होनी है, तो आपने कहा कि मेरा पैरामीटर 1 वो करंट है, उसकी मतलब जो चीज़ मैं मेजर कर रही हूँ वो करंट है, और वो अगर लेस देन उस 100 है, तो ये मैसेज जाना चाहिए कि मेरा करंट 100 से लेस हो गया है। एपीआईज पे जाऊंगी, एपीआईज पे मैं यहाँ पे एपीआई का हेडर होता है वो दिया मैंने, मेथड दिया, यूआरएल दिया, बॉडी लिखी, करंट इज लेस देन 100, डन। ठीक है, और उसके बाद जो है वो यहाँ देख लें कि जैसे ही करंट 80, 90, 100 पे होगा वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक जो रूल इंजन वाला है वो मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि जो मॉडल्स हैं, रूल इंजन वाला कहाँ गया? इसमें था। अच्छा नहीं, ये तो एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग है, ये तो मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ। बहरहाल आपके पास ना रूल और पॉसिबिलिटी है, रूल इंजन भी बना सकते हैं आप अपना, डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बस सही है, मैं ये आप साइट एक्सेस कर लेंगे, रियल टाइम आईओटी अगर आपको देखना है, ये data.linkthinks.ai, ये हमारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क चल रहा है। ठीक है,